پاکستان کا ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ، زمین سے زمین تک مار کرنے والا ابدالی میزائل 450 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے میزائل تجربے کا مقصد آپریشنل تیاری یقینی بنانا، تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق کرنا تھا۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ابدالی میزائل چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کے رافیل طیارے آئے تھے، انہیں جام کر دیا گیا۔ ہمارے طیارے بھی پہنچ گئے تو وہ بھاگ گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا رافیل طیاروں کے واقعے کے بعد بھارت کی جانب سے کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ بھارت کے ساتھ جھڑپ کا امکان ابھی کم نہیں ہوا۔ تحقیقات کا مطالبہ نہ کرتے تو شاید عالمی برادری کا رویہ جارحانہ ہوتا۔ سنتاس معاہدے پر چند دنوں میں ورلڈ بینک جائیں گے۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات اور DG ISPR کل سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے۔ بریفنگ پاک بھارت کشیدگی، موجودہ قومی سلامتی صورتحال پر دی جائے گی۔ شرکاء کو افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی مواقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ مودی دیکھ لے، پاکستان نے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ابدالی میں ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے پاکستان کی میزائل صلاحیت دنیا میں کئی ملکوں سے بہتر ہے۔ مودی سن لے، پاکستان پر حملہ کیا گیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ ہم نے دنیا کو یقین دلایا ہے ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی۔ بھارت پاکستان کی ترقی کا سفر روکنا چاہتا ہے، اس لیے ہنگامہ کر رہا ہے۔ مودی نے IMF سے پاکستان کے معاہدے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم، دوست ملکوں سے رابطے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی کے سفیر کی اہم ملاقات۔ ترک سفیر نے کہا ترکی پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنا بھارت کی سازش ہے۔ بھارت کسی بھی قسم کا ثبوت دینے میں ناکام رہا۔ بھارت کو تحقیقات کی پیشکش کا جواب دینا ہے۔ تحقیقات میں ترکی شامل ہوتا ہے تو خیر مقدم کریں گے۔ اسحاق ڈار کے یونان اور سوئٹزرلینڈ کے ہم منصب کو ٹیلی فون۔ نائب وزیر اعظم نے پہلگام واقعے پر پاکستانی موقف سے آگاہ کیا۔ پہلگام ڈرامے کے بعد پاک فوج کی پیشہ ورانہ تیاریاں دیکھ کر بھارت پر سختہ تان۔ پاک فضائیہ کی جدید ٹیکنالوجی اور تکنیکی صلاحیتوں نے بھارت کو حیران کر دیا۔ پاکستان کے جدید ریڈار نظام نے دشمن کی سرپرائز کارروائی کا امکان ختم کر دیا۔ رافیل طیاروں نے سرحد کی جانب بڑھنے کی کوشش کی مگر منہ کی کھانا پڑی۔ بھارت کا فرانسیسی ساختہ رافیل طیاروں پر انحصار پہلی ہی آزمائش میں بری طرح فلاپ ہو گیا۔ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن کسی بھی جارحیت پر پاکستان کا جواب ہوگا ایک کے بدلے دو۔ واہگہ بارڈر پر پنجاب رینجرز کی پریڈ، جوانوں کے قدموں کی دھمک سے سرحد پار دل دہل گئے۔ پرچم اتارنے کی تقریب دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ پنجاب رینجرز کی خواتین اہلکاروں نے بھی شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا۔ بیانیے کی جنگ میں پاکستان کی فیصلہ کن کامیابی، وزارت اطلاعات نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملی نغمہ بھارتی یوٹیوب چینلز پر چلوا دیا۔ سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی۔ ملی نغمہ بھارت میں یوٹیوب پر بطور اشتہار نشر ہو رہا ہے جس میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قومی عزم اور دفاع وطن کے جذبے کی عکاسی کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بھارت سمجھ رہا تھا ہمارے چینلز بند کر کے بیانیہ بنانے میں سبقت لے جائے گا۔ پاکستان نے بیانیہ بنانے میں بھارت کو شکست دی۔ بھارت کا محاذ آرائی کے لیے نیا جھوٹا بیانیہ اور من گھڑت پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی میڈیا اب آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کو دہشت گردی کے کیمپس کہنے لگا۔ پاکستان نے بین الاقوامی اور قومی میڈیا کو آزاد کشمیر کا دورہ کا اہتمام کرا لیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کل میڈیا کو انہی جگہوں کا دورہ کرا کر بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کرے گا۔ بنگلہ دیش کے ریٹائر میجر جنرل نے بھارت نے پاکستان پر حملے کی صورت میں حکومت کو بھارت پر حملے کی تجویز دے دی۔ سوشل میڈیا پر ریٹائرڈ میجر جنرل فضل الرحمان نے کہا اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو ہمیں بھی بھارت کی 7 شمالی مشرقی ریاستوں پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ اس معاملے پر بنگلہ دیش کو چین سے بات کرنی چاہیے۔ بھارت نے غیر قانونی حراست میں رکھے گئے پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔
सिक्योरिटी ज़राए का कहना है भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में मारने का मंसूबा बनाया है। मारने के बाद उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को पहले से लाशें, प्लांटेड हथियार के वीडियोस और तस्वीर शेयर कर दी जाएंगी। भारतीय मीडिया इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। भारत को आलमी सतह पर एक और नाकामी का सामना। भारत की जानिब से IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिश नाकाम। भारत ने IMF से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर-ए-नौ जायजा लिया जाए। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में रुकावट की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने रॉयटर्स को इंटरव्यू में बताया, भारत पाकिस्तान को मुआशी तौर पर धचका पहुंचाना चाहता है। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ट्रैक पर है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करें। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, मौजूदा हालात पर काबू ना पाया गया तो खित्ता जोहरी तसादुम की तरफ जा सकता है, जिसके नताइज तबाहकुन होंगे। अमरीकी सदर से अपील है, बहरान के हल में अपना किरदार अदा करें और मसला कश्मीर का बुनियादी तनाज़ा हल करने में मदद करें, जो दोनों मुल्कों के दरमियान जोहरी फ्लैश पॉइंट है। सदर ट्रंप के लिए मौका है वो इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करें। पहलगाम वाक़े की तहकीकात में पेशकश का जवाब न आने का मतलब ये है कि भारत इसमें संजीदा नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारतीय मीडिया के इल्जामात और प्रोपेगेंडा का ARY न्यूज पर भरपूर जवाब। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब करने में ARY न्यूज रहा सबसे आगे। ARY न्यूज ने भारतीय मीडिया के हर प्रोपेगेंडा का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि सबूत के साथ हकायक दुनिया के सामने रखे। हेडलाइंस, बुलेटिन और खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए भारतीय मीडिया के हर झूठ का पर्दा चाक किया, अपने नाजरीन को हर लम्हा बाखबर रखा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशन, 5 खारिजी हलाक, 2 गिरफ्तार। कार्रवाइयां बाजवर, शुमाली वजीरिस्तान और मोहम्मद में की गई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। 5 खारिजी जहन्नुम वासिल करने पर सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। और इस्लामाबाद क्लब के सामने टावर पर चढ़े शख्स को उतार लिया गया। जिला इंतजामिया ने टावर पर चढ़े शख्स से मुज़ाकरात करके नीचे उतारा। पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार करके थाने ले गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी जमीन अपना घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं, पहले मरहले में 2000 लोगों को 3 मरला के प्लॉट्स कुरंदाजी के जरिए मुफ्त देंगे। गुज़श्ता हुकूमतों ने दहाइयों में भी 33,000 घरों की तामीर नहीं की। पूरी कोशिश है 1 साल में कम से कम 1 लाख घर दें। 5 साल में 5 लाख लोगों को घर देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क में पुलिसिंग निज़ाम बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार इंतहाई अहम है। नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान दिया जाए। इस पर माजी में तवज्जो नहीं दी गई। बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ ताउन को फ़रोग़ दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अफसरान को बैरून मुल्क ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर भेजा जाए। जिना हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। बानी PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल हो चुके, स्पेशल प्रोसिक्यूटर दलाइल देंगे। ATC लाहौर ने उमर अयूब की उबूरी जमानत में 26 मई तक तौसी कर दी। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के इंतखाबात। कासिम खान CPNE के सदर और गुलाम नबी चांडियो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। अयाज खान सीनियर नायब सदर और तनवीर शौकत डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। नौमुंतखब सदर कासिम खान ने कहा, पीका एक्ट के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे। हुक्मरानों को तौहीन और तनकीद के दरमियान फर्क समझना होगा।
हुकूमत को इश्तेहारों की मुनसफाना तकसीम पर अमल करना होगा। सदर और वज़ीर आज़म की CPN के नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगामात। सदर जरदारी ने कहा, गज़ा फ़लस्तीन जैसे जंग ज़दा इलाकों में जाने गंवा देने वाले सहाफ़ियों को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। जाली खबरों, गलत मालूमात, सनसनी के माहौल में मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। वज़ीर आज़म ने कहा, मीडिया को झूठ, प्रोपेगेंडे, सियासी मफादात की तकमील के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। मीडिया ने भारत के खित्ते में जंग की फ़ज़ा पैदा करने की मज़मूम मकासद को खाक में मिलाया। हमारा जिम्मेदार मीडिया कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काविशों की हिमायत करता रहेगा। इंडियन टॉप मीडिया चैनल्स, वेबसाइट्स, URLs की लिस्ट देख लें। सेनेटर फैसल वार्डन ने भारतीय ब्लॉग चैनल्स की लिस्ट भी शेयर कर दी। हमारी अफवाज का रिकॉर्ड है, जो मैली आंख से देखता है उसे गिराना जानते हैं, दुश्मन को माफी मांगने पर चाय पिलाना भी जानते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा, मोदी को खबरदार करता हूं कि प्यार करोगे तो प्यार करेंगे, अगर आंखें दिखाओगे तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। भारत की मुहिम जोई पर अवाम पाक फौज के साथ होंगे। एक के बाद एक भारतीय सियासतदान पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत से सवाल पूछने लगा। दावा किया कि पहलगाम वाक़या सरहद पार से किया गया तो सबूत कहां है। कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट और पंजाब के साबिक वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी का मुतालबा, कहा, पहलगाम वाक़या बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी कोताही है, मोदी को जवाब देना होगा। चरणजीत सिंह ने मोदी सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर भी एतराज उठाया। पाकिस्तान तो क्या, दुनिया में किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखी। चरणजीत सिंह की जानिब से सवाल पूछने पर भारतीय गोदी मीडिया को आग लग गई। गोदी मीडिया ने चरणजीत सिंह को पागल करार देना शुरू कर दिया। सरबराह मरकजी जमीयत अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर इंतकाल कर गए। साजिद मीर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्टैंडिंग कमेटी बराए मजहबी उमूर के चेयरमैन रहे। प्रोफेसर साजिद मीर 2 अक्टूबर 1938 को सियालकोट में पैदा हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। गजा में इसराइली फौज की तिब्बी अमले को निशाना बनाने की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वीडियो ने इसराइल के दावे को गलत साबित कर दिया। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की बंदिश 3 माह में दाखिल हो गई। इमदाद न मिलने से अहले गजा को खाने पीने की अशिया की शदीद कमी का सामना। ऑस्ट्रेलियाई इंतखाबात में लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। एंथनी अल्बनीज दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब। अपोजिशन लीडर और लिबरल पार्टी उम्मीदवार पीटर डोटन ने शिकस्त तस्लीम कर ली। एंथनी अल्बनीज ने विक्ट्री स्पीच में कहा, पीर से हुकूमत काम पर वापस आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को आलमी चैलेंजों का मुकाबला करना है। लेबर पार्टी की फतह को तारीखी करार दिया जा रहा है। कोयटा के खिलाफ इस्लामाबाद की बैटिंग पुरएतमाद आगाज के बाद लड़खड़ा गई। साहबजादा फरहान और कायल मेयर्स ने 58 रन की ओपनिंग शिराकत बनाई, फिर यके बाद दी गई 4 विकेटें गिर गई। साहबजादा फरहान 39, कायल मेयर्स 22, कोलन मंदू 9 और कप्तान सलमान अली आगा बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। कदाफ स्टेडियम में इस्लामाबाद की टीम ग्लैडिएटर्स की दावत पर बैटिंग कर रही है। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे मारूफ फैशन डिजाइनर हसन शहरियार, खेलेंगे मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिए। आदिल मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरेंगे। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और जीत। थाईलैंड में रैंकिंग फाइट में पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने तिरजोत सिंह को पछाड़ दिया। शहीर ने रिवायती हरीफ को चौथे राउंड में नॉकआउट किया।